let us take fz as e raised to x cos py plus iota sin y plus q plus r. Okay, so this is the question where pq belongs to r. It is given that fz is analytic function, then find value of pq and r. Okay, simple. If fz is analytic, means fz exists. Okay, if this is analytic, then this means that fz exists. अगर fz exist करता है और प्लस fz एक्सिस्ट तो CR इक्वेशन सेटिस्फाई होगी. ux equals to vy and uy equals to minus vx. Okay, so what is ux? Differentiate this with respect to ex cos py को कुछ होना नहीं है because we are keeping y constant vy. This is the y term. Okay, अच्छा इसमें जो u है that is real part, so इसमें r भी आएगा but r is constant, so उसका डिफरेंशियल वैसे 0 हो जाएगा. So vy is cos y plus q. Okay, यहाँ पे भी e raised to x है. This is ex cos y plus q. Similarly, if uy का अगर हम देखें, this is u, so uy will be ex minus sin py, and then again p outside minus vx, so minus what is vx? E raised to x sin y plus q. Okay, so from here we can write ki minus p sin py minus minus this plus is equals to sin q plus y. Or from here we can say ki sin cos py is equals to cos y plus q. Okay, अच्छा यहाँ से one thing is sure कि r पे तो कुछ restriction नहीं है, so r can be any value from real number system. इधर से इसके अगर जनरल टर्म रखेंगे तो 2m pi plus minus y plus q and this, इसको भी ऐसे रहने देते हैं. सो यहाँ से देखो, अगर हम लोग यहाँ पे माइनस लेते हैं तो y इस साइड आके y की एक फिक्स वैल्यू हो जाएगी, बट y तो यहाँ पे पूरे कुछ भी ले सकता है इसकी डोमेन में. दिस इज नॉट सिंगल टर्न. जो y और x की वैल्यू है तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है. x एंड y आर वेरिएबल, सो वी कैन नॉट फिक्स y. सो यहाँ पे माइनस तो नहीं ले सकते. अगर प्लस लेते हैं तो अगर प्लस लेंगे देन ऑल्सो द प्रॉब्लम इज देयर, क्योंकि यहाँ y है यहाँ पे y है तो प्लस में भी कोई इसका इलाज तो है नहीं. Okay, so then what can we take here? अगर if let us say ये इसको ऐसे py minus plus y equals to 2m pi plus minus q, ये हो गया. ठीक है, अगर हमें चाहिए कि ये y इन्वॉल्व नहीं हो, तो अगर y को इन्वॉल्व नहीं करना तो यहाँ प्लस लेना पड़ेगा हमें नीचे वाला साइन. अगर प्लस ले लेते हैं तो p y plus y 10 pi नीचे वाला साइन लिया माइनस q. अगर इसमें अब p को -1 पुट कर दें तो ये हो जाएगा 0. 2m pi equals to minus q, so q will be 2m pi. अगर इस टाइप की कंडीशन लेते हैं तो i की कुछ भी वैल्यू है ये सेटिस्फाई होगा जब q equals to 2m pi होगा. इसमें when q is 2m pi and we take minus here, then y कुछ भी वैल्यू बट p यहाँ से -1 आया, तो बेसिकली पॉसिबल वैल्यू इज p -1 एंड q इज 2m pi. वैसे अगर यहाँ माइनस ले लेते हैं हम देन p को 1 लेना पड़ता, तो प्लस माइनस,
and R belongs to R. So these are three possibilities. Okay, I hope समझ में आ गया होगा. Let us take next question. Okay. So okay, now take next question. If Z is given as log rho plus iota phi and W is given as rho cos phi plus iota sin phi, this is given. W here, W is nothing but a function of Z, Fz. Then find the points where W, that is Fz, is not analytic. ओके, सो हमें वो फंक्शन वो पॉइंट फाइंड करने जहाँ पे दिस W इज नॉट एनालिटिक. तो पहले तो वी नीड टू एक्सप्रेस दिस W एज फंक्शन ऑफ Z. ठीक है, फंक्शन ऑफ Z हमें इसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा. उसके बाद तो वी कैन सी, तो यहाँ पे W जो है दिस इज log rho प्लस iota phi. दिस W इज नथिंग बट rho e raised to iota phi. इस आइलर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं. और यहाँ पे जो Z है इसको वी कैन राइट log rho e raised to power iota phi. तो ये सेम ही चीज है, log rho plus iota phi can be written as. Now see, this is W, so this is W, so this is log W. From here we can say W is e raised to power Z. Now we have W as a function of Z. अब ये देखना है कि ये कहाँ पर एनालिटिक नहीं है. So W is e raised to Z, so e raised to Z, तो इसकी डोमेन में तो हमेशा ये एनालिटिक होगा. Okay, this will be analytic function for each Z belongs to the domain of function. अच्छा, इसमें एक चीज है, यहाँ पे हमें रो पे कंडीशन देखनी है. यहाँ पे Z क्या है, रो e raised to power iota phi. So this रो is modulus of Z. So जब तक Z हमारा फाइनाइट है, Z फाइनाइट का मीन्स रो इज फाइनाइट, then e raised to Z exist. But when रो is infinity, अगर रो इन्फिनिटी हो जाएगी तो W एग्जिस्ट नहीं करेगा. सो फॉर फाइनाइट वैल्यू ऑफ रो, फाइनाइट वैल्यू ऑफ रो W इज एनालिटिक. ठीक है, इससे रिलेटेड एक और चीज है, जैसे ई रेस टू जेड क्या है, इसको हम इंटायर फंक्शन भी बोल सकते हैं. इंटायर फंक्शन ऐसा क्यों है, अगर कोई फंक्शन पूरे इंटायर जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है, जेड प्लेन में बोलते हैं इसको, इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन में अगर एनालिटिक है कोई फंक्शन, देन वी से उस फंक्शन को इंटायर फंक्शन बोलते हैं. ठीक है, so what is entire function? Entire function is that function which is analytic everywhere. ठीक है, which is analytic everywhere in complex plane. ऐसे ही रिलेटेड डेफिनेशन है रेगुलर फंक्शन. रेगुलर फंक्शन क्या होगा, इफ say function fz is differentiable at all point of given domain, then it's known as a regular function in that domain. ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा. इंटायर फंक्शन और रेगुलर फंक्शन में डिफरेंस ये है कि जो इंटायर फंक्शन है वो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में, इन द फुल कॉम्प्लेक्स प्लेन एनालिटिक होगा, और ये रेगुलर प्लेन में ये डिफरेंशिएबल होगा इन दैट पर्टिकुलर डोमेन. सो ई रेज टू जेड इज एन इंटायर फंक्शन. ठीक है, ऐसे एक और क्वेश्चन देखते हैं. Z is given as sin h u hyperbolic u cos v plus iota cos hyperbolic u sin v. Okay, this is given
as z and w is given as u plus iota v। तो इसमें भी हमें फाइंड करना है कि w कहाँ पर, w इज नथिंग बट फंक्शन ऑफ z, वो पॉइंट फाइंड करने हैं जहाँ पे दिस फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। सो ये z है। अच्छा, फर्स्ट थिंग इसमें हाइपरबोलिक फंक्शन है, तो ये तो आई थिंक ये तो वी ऑल नो दैट e sin hyperbolic x is nothing but ex minus e raised to minus x divided by 2 and cos hyperbolic x is nothing but e raised to x plus e raised to minus x by 2। ठीक है, फर्दर हमें पता है कि अगर e raised to iota theta क्या होता है, cos theta plus iota sin theta, एंड e raised to minus iota theta क्या होगा, इसका कंजुगेट हो जाएगा। So from this we can say that 2 cos theta is nothing but e raised to iota theta plus e raised to minus iota theta by 2। ठीक है, अगर इस थीटा को हम लोग आयोटा थीटा से रिप्लेस करते हैं, आयोटा एक्स से रिप्लेस कर देते हैं थीटा को आयोटा एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ई आयोटा आयोटा एक्स प्लस ई आयोटा आयोटा एक्स, दिस इज माइनस, राइट, माइनस डिवाइड बाई 2, आयोटा इज माइनस, ये माइनस हो जाएगा, ई रेज टू माइनस एक्स प्लस ई रेज टू एक्स बाई 2। सो कोस आयोटा एक्स इज e raised to minus x plus e raised to x by 2, that is same as cos hyperbolic x, so this is equals to cos iota x, we can say that। ऐसे ही if we इसमें से ये माइनस करते हैं तो यहाँ से क्या आएगा, e raised to iota theta minus e raised to minus iota theta by 2 equals to sin theta, 2 iota sin theta, बेसिकली यहाँ iota होगा। अगर इसमें भी वैसे ही आयोटा एक्स रिप्लेस थीटा की जगह आयोटा एक्स करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस एक्स यहाँ प्लस एक्स। ठीक है, लेट अस नेक्स्ट पे, इफ यहाँ पे हम लोग ने थीटा को आयोटा एक्स पुट कर दिया तो ये हो जाएगा माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 आयोटा, दैट इज इक्वल टू साइन आयोटा एक्स। ठीक है, अगर इसमें हम दोनों तरफ से आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, so we can write e raised to x minus e minus x by 2, minus वाला ले लिया, this will be minus iota sin iota x। ठीक है, and this is sin hyperbolic x, this is definition of sin hyperbolic। तो यहाँ से we can say कि sin जो iota x होगा that will be iota sin hyperbolic x, जैसे ये इधर जाएगा minus 1 by iota is plus iota, so this and cos iota x is simply cos hyperbolic x। ये दो चीजें यहाँ से आ गई। ठीक है, नो, हाँ, अब हमारा जो क्वेश्चन था, व्हाट वाज द क्वेश्चन, सो इसमें सो दिस कैन बी रिटन एज साइन, दिस इज माइनस आयोटा आयोटा यू, हमने यूज किया कॉन्सेप्ट का, कोस वी प्लस आयोटा साइन एच यू को आयोटा यू लिख सकते हैं एंड साइन वी। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, आयोटा तो आ गया बाहर। ठीक है, साइन वी, दिस इज साइन वी माइनस आयोटा यू हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में वी कैन सी कि यहाँ से अगर हम लोग माइनस आयोटा बाहर लेते हैं तो दिस विल बी यू, ठीक है, प्लस आयोटा वी, दैट इज आयोटा साइन माइनस आयोटा यू प्लस आयोटा वी इज नथिंग बट डब्ल्यू, तो ये रिलेशन हमारे पास आ गया। ठीक है, नो let us find
प्लेस किया। ओके, सो यहाँ से वी विल हैव z इक्वल्स टू, या इसको भी कैंसिल, z डिवाइड बाई आयोटा इक्वल्स टू साइन माइनस आयोटा ओमेगा, सो माइनस z आयोटा इक्वल्स टू साइन माइनस आयोटा ओमेगा। ठीक है, यहाँ से सो माइनस आयोटा ओमेगा इज नथिंग बट साइन इनवर्स माइनस z आयोटा, ये रिलेशन आ गया हमारे पास। नाउ ओके, we have minus iota z equals to sine inverse minus iota omega. From this, if we differentiate this with respect to z, so dw by dz will be 1 divided by root 1 minus x square, x is minus iota z square, then इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ आएगा माइनस आयोटा, सो माइनस आयोटा दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गया, dw by dz इज नथिंग बट 1 प्लस रूट 1 प्लस z स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हमें फाइंड करना है वो वैल्यूज ऑफ z जहाँ पे w जो है वो एनालिटिक नहीं है। अच्छा, अगर जब w एनालिटिक है तो w लेटस से, हाँ w इज एनालिटिक, देन dw by dz मीन्स इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z एग्जिस्ट करेगा। सो ये वैल्यू जहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगी वहाँ पे एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा ये। सो ये कब एग्जिस्ट नहीं करेगी, जब ये इन्फिनिटी की तरफ क्लोज करेगी, मीन्स व्हेन z स्क्वायर प्लस 1 इज 0 means z square equals to minus 1, that means z equals to plus minus iota, means z equals to plus minus iota are the points जहाँ पे w is not analytic। ठीक है, तो इसमें सिंपल है कि जब भी पूछा जाए कोई भी फंक्शन एफ जेड वेयर इट विल सीज टू बी एनालिटिक, तो उसके लिए व्हाट विल डू, फर्स्ट थिंग वी फाइंड दैट फंक्शन w एज ए फंक्शन ऑफ z, जैसे w और z के बीच में एक लिंक आ जाएगा लाइक दिस, देन विल गेट dw by dz एंड विल सी कि जहाँ पे वो dw by dz एग्जिस्ट नहीं करता है वो वैल्यूज हमारी वो वैल्यूज होगी जहाँ पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर है। सो नाउ लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ओके, इट इज नॉट क्वेश्चन पर से, अगर एफ जेड है, इफ एफ जेड is analytic then fz is independent of z bar is conjugate of z। सो अगर इसको हमें प्रूव करना है, सो अगर कोई भी फंक्शन जैसे अगर एफ एक्स है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो डी और डी एक्स एफ एक्स जीरो होना चाहिए। मीन्स इसका मतलब ये हो गया कि एफ इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन ओनली डी वाई डी एक्स उसका जीरो होगा, देन ओनली एफ एक्स विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो यहाँ पे भी अगर एफ जेड इंडिपेंडेंट ऑफ जेड बार है तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू जेड बार वो जीरो होना चाहिए। अगर हम लोग ये प्रूव कर पाते हैं देन दिस इज प्रूव्ड। अच्छा, फर्स्ट थिंग व्हाट इज जेड, जेड इज नथिंग बट एक्स प्लस आयोटा वाई, एंड जेड बार क्या हो जाएगा इसका कंजुगेट। तो अगर हम दोनों को ऐड करें तो x क्या आएगा, 2x इक्वल्स टू जेड प्लस जेड बार, सो x इज दिस, एंड इफ इसमें से माइनस करेंगे 2 आयोटा y इज जेड माइनस जेड बार, सो y इज जेड माइनस जेड बार डिवाइड बाई 2 आयोटा। ओके, नाउ वी नो कि जो एफ जेड है यहाँ पे वो ऑब्वियसली u प्लस आयोटा v फॉर्म में है, एंड दिस u एंड v आर फंक्शन ऑफ x एंड y, बट x इटसेल्फ इज फंक्शन ऑफ z एंड z बार। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो f है दिस इज फंक्शन ऑफ सम z एंड z बार। ठीक है, तो अगर हम लोग टी एफ जेड बाई डी जेड बार हमें अगर ऑब्टेन करना है तो इसको हम लिख सकते हैं कि डेल एफ, ओके, डेल एफ बाई डेल एक्स डेल जेड
डेल जेड बार चाहिए हमें, सो डेल जेड बार प्लस डेल एफ डेल वाई बाय डेल जेड बार. ओके, बिकॉज एक्स इटसेल्फ इज फंक्शन ऑफ जेड एंड जेड बार एंड वाई भी जेड बार का फंक्शन है, और जो एफ है वो एक्स वाई का फंक्शन है. सो डेल एफ डेल बेसिकली क्या होगा, डी एफ कैन बी रिटन एज डेल एफ डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल एफ डेल वाई डी वाई. ऐसे हम डी एफ को लिख सकते हैं बिकॉज इट्स अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई. अगर इसको जेड बार के विद रिस्पेक्ट टू हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू डेल जेड बार हो जाएगा. सिंपल है. अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, डेल एफ बाई डेल एक्स बाई डेल जेड बार क्या होगा, जेड एंड जेड बार दोनों एक वेरिएबल की तरह हम ट्रीट कर रहे हैं यहाँ पे. सो इसको विद रिस्पेक्ट टू जेड बार अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे कीपिंग जेड एज कांस्टेंट तो ये क्या आ जाएगा 1/2 प्लस डेल एफ बाई डेल वाई बाई डेल जेड बार क्या होगा -1/2 आयोटा. सो यहाँ से 1/2 बाहर आ जाएगा, डेल एफ डेल वाई -1 इज आयोटा डेल एफ बाई डेल वाई. ठीक है. अच्छा, एफ जेड हमें पता है कि एनालिटिक है, गिवन है बेसिकली, और वी नो दैट अगर एफ जेड एनालिटिक है तो एफ डे जेड जो हमने अभी प्रूव किया विल बी इक्वल टू डेल एफ डेल एक्स वाई इक्वल टू माइनस डेल एफ डेल वाई. इसका मतलब क्या है, डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस आयोटा डेल एफ डेल वाई विल बी जीरो. दिस इज द सेम टर्म, सो दिस इज जीरो. इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये है डी एफ जेड बाई डेल जेड बार इज जीरो. बेसिकली एफ जेड इज इंडिपेंडेंट ऑफ जेड. ओके, इस चीज का यूज बहुत जगह होने वाला है दिस कॉन्सेप्ट का. जैसे a simple application of this is this let us okay okay अगर हमें एफ जेड बार पूछा जाए कंजुगेट ऑफ एफ जेड then we can write it as f conjugate of z bar if only if fz is एनालिटिक फंक्शन. इसका मतलब ये हुआ अगर एफ जेड एनालिटिक है तो वो जेड बार से इंडिपेंडेंट होता है. इसका मतलब इसमें जो भी टर्म आएंगे वो एक्स प्लस आयोटा की फॉर्म में ही रहेंगे, मतलब साइन वट एवर फंक्शन इट इज, और वो एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में नहीं रहेंगे, उसमें एक्स माइनस आयोटा वाई टाइप की चीज नहीं आएगी. ओके, जो भी होगी दैट विल बी कन्वर्टेबल इनटू एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में, साइन एक्स प्लस आयोटा वाई ई रेज टू एक्स प्लस आयोटा वाई एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ दोज फंक्शंस. जेड बार इसमें आएगा नहीं. सो अगर एफ जेड है उसके का हम कंजुगेट ले रहे हैं एंड वी नो कि एनालिटिक है तो ये पूरा जेड का ही फंक्शन होगा. सो वी कैन डायरेक्टली पुट द बार ऑन जेड. ओके, सो आई होप ये सब क्लियर है. नाउ एक क्वेश्चन लेते हैं. इफ मॉडुलस एफ जेड इज कांस्टेंट या ऐसा करते हैं, if argument of fz is constant then so that fz will be a constant function. okay, so argument of fz क्या होता है, fz क्या है u plus iota v, और argument क्या होता है अगर हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में देखें ये कोई भी z है, दिस इज थीटा, तो यहाँ से दिस इज आर्गुमेंट. अगर ये x, y है, z इज नथिंग बट x प्लस आयोटा y, तो इसको हम x, y ले सकते हैं. सो दिस विल बी x, सो यहाँ से tan थीटा इज y बाई x. ये तब होगा जब ये z है. अब यहाँ पे पॉइंट क्या है, fz है, तो fz में कल जो आर्गुमेंट होगा वो क्या होगा, यहाँ से आर्गुमेंट थीटा कैन बी रिटन एज tan इनवर्स y बाई x. सो ये हो जाएगा tan इनवर्स v बाई u. अब हमें गिवन है कि ये जो आर्गुमेंट है v बाई u ये कुछ कांस्टेंट है, लेट अस से a. ठीक है, तो यहाँ से वी कैन राइट कि v बाई u इज tan a. tan a इटसेल्फ इज ए कांस्टेंट, तो इसको कुछ c रख दो. तो v इज इक्वल्स टू c u. ये रिलेशन आ गया हमारे पास. फर्दर इट इज गिवन कि जो fz है वो एनालिटिक है, दिस इज एन एनालिटिक फंक्शन. तो कोची-रीमन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं इस पे. कोची-रीमन क्या बोलता है, लेट अस से इसको हम क्या लिख सकते हैं, u इक्वल्स टू सम c डैश v.
फिर सी डैश इक्वल्स टू 1/c, इससे न्यू कॉन्स्टेंट। कोचरेमन बोलता है कि ux इक्वल्स टू वी वाई, तो यहाँ से ux अगर हम करेंगे तो ux इक्वल्स टू सी डैश वी एक्स, सिमिलरली uy क्या आ जाएगा सी डैश वी वाई, बट जो वी एक्स है ओके, अगर वी एक्स को हम वी एक्स कैन बी रिटन एज यू वाई, या इसको ऐसा कर लेते हैं, ये क्या होगा यू एक्स इज नथिंग बट वी वाई, सो वी वाई इक्वल्स टू सी डैश वी एक्स। ऐसे यू वाई इज नथिंग बट माइनस वी एक्स, सो दैट इज माइनस वी एक्स इक्वल्स टू सी डैश वी वाई। बेसिकली ये जो u है उसको v के टर्म्स में लिख दिया कोचरेमन इक्वेशन से, तो हमारे पास ये रिलेशनशिप आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, वी वाई डिवाइड बाई माइनस वी एक्स, ऊपर वाले को नीचे से डिवाइड किया, सीधे से सीधे से कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया वी एक्स डिवाइड बाई वी वाई, ये क्या हो जाएगा वी वाई स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। बट v जो है u एंड v जो इसमें एफजेड है तो रियल नंबर सिस्टम में, तो दो रियल नंबर्स के सम का स्क्वायर 0 तभी पॉसिबल है जब वो खुद आपस में 0, तभी तो ये 0 हो सकता है, बिकॉज ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, तो 0 ही होना पड़ेगा इसको। तो यहाँ से हमारे पास आ गया वी वाई इक्वल्स टू 0 एंड वी एक्स इक्वल्स टू 0। वी वाई 0 मतलब क्या हुआ कि v इज कॉन्स्टेंट विद रिस्पेक्ट टू y, और वी एक्स 0 मतलब v इज कॉन्स्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब v इज कॉन्स्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x एंड y बोथ। अगर v कॉन्सेप्ट है कांस्टेंट है तो u क्या होगा, u यहाँ से हमें पता है u इक्वल्स टू सी डैश v, तो सी डैश इटसेल्फ इज ए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट सी डैश इनटू c, दिस इज आल्सो अगेन कांस्टेंट, सो u एंड v बोथ आर कांस्टेंट्स, तो fz क्या हो जाएगा, लेट अस से c1 plus iota c2 where c1 c2 are constant, so fz is constant and hence proved। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक क्लियर है।